Okay, so we will revise a little. Illustration number 6. Uh, Store purchase for stock. Look at this image. When you are purchasing store or material, okay, this account should be debited and this account should be credited. Like that, if material goes in production, so this account should be debited and this account should be credited. Means work in progress account should be debited and material, that is store account, should be credited. Likewise, if a production is completed and you got the finished goods, so finished goods account debit to work in progress. So this way, the account which is there on the right of yours of this image is to be debited every time, है ना? तो राइट साइड में उसको आपको डेबिट करना है, तो ये इमेज को आपको इसी तरीके से पकड़ना है. So process is going like this only. So whenever the department or the activity which is receiving the particular material or particular activity, that should be debited. Okay. So ये इमेज को एकदम क्लियरली अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई एंट्री पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. And now it says the material is purchased. So material is purchased, it will be kept in store. Correct? Store account debit to general ledger adjustment account. क्यों general ledger adjustment account use करना है? Because we cannot use cash, bank और creditor. है ना? तो उसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे एंड इसकी जगह पे हम लोग को क्या करना है? कभी भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को यूज करना है. ठीक है. So instead of debtor, cash, bank, creditor, we will be using general ledger adjustment account. है ना? ये जो अलग से ब्रैकेट बना के दिया हुआ है यहाँ पे इसके लिए. ठीक है. सो स्टोर परचेज, तो स्टोर परचेज है तो कभी भी परचेज किया तो स्टोर अकाउंट डेबिट. ठीक है. और परचेज करेंगे तो कैश जाएगा. ठीक है. या फिर आपने क्रेडिट पे किया तो क्रेडिटर होगा. तो नॉन इंटीग्रेटेड में दे नेवर गिव द फुल डिटेल्स अबाउट कैश, बैंक और क्रेडिटर. But in case of integrated cost accounting system, they will specify either it is in cash or it is in check or either ways or it is in on credit basis. So they will specify that. क्योंकि वहां पे आपको एंट्री पास करने के लिए कैश, बैंक और क्रेडिटर स्पेसिफिकली लगता है. ठीक है. बट कैश, बैंक और क्रेडिटर यहाँ पर कोई भी अपन यूज नहीं करते हैं. चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे वो कैश पे हो, हम लोग को कोई लेना देना नहीं. फाइनेंशियल मैटर्स हम लोग को लेना देना नहीं होता कॉस्ट अकाउंटिंग में. और जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है. ठीक है. दैट विल बी टेकन केयर बाय फाइनेंशियल अकाउंटेंट. ठीक है. ओके. सो स्टोर परचेज, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. तो ये एंट्री हमने पास कर दिया था ऑलरेडी विद अमाउंट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. उसके बाद परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक जॉब. तो अगेंस्ट स्पेसिफिक जॉब है, आपने डायरेक्ट परचेज किया है, डायरेक्ट आपने पेमेंट किया है और उसको स्पेसिफिक जॉब मतलब आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं उसको. ठीक है. जॉब मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन. है ना? सो यू आर यूजिंग इट हियर. सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. सो what happens usually, you purchase, you keep it in a store, then you use it for the production. But what happened here, you have purchased it for the specific job matlab for production. So you have purchased for production. So WIP account debit to general ledger adjustment account, that is also covered here. है ना? ये भी complete कर लिया था. Now what happens, direct material is issued. है ना? Store issued direct material. Store का मतलब भी material होता है. Store issued, and that is direct material. When we talk about direct material or direct labor, they are used in production. So when they are used in production, WIP account should be debited. ठीक है. तो यहाँ पर ये मटेरियल जो है that is being used in production. ठीक है. So WIP account should be debited और store account should be credited. तो ये एंट्री पे हम लोग ने पास कर लिया था. इधर थर्ड एंट्री. हाँ, WIP account debit to store. So direct material is being used. So whenever it is direct material, every time when it is used, it work in progress account will be debited. And since it is store, so store account should be credited. Okay. When indirect material is used, ठीक है, indirect material जो है वो directly production में use नहीं होता. ठीक है. So for this, whenever it is indirect material, indirect labor, so in that case we will take factory overheads instead of work in progress. ठीक है. तो यहाँ पे याद रखना है.
When it is direct material, then only it will be work in progress. When it is indirect material, it is factory. So remember how you used to prepare your cost sheet. Direct material, direct labor, direct overheads together constituted your prime cost that goes in production directly. Okay. And what happens to indirect material, indirect labor, or indirect factory expenses, that was in works, that was to be taken in factory overheads या फिर आप production overhead या फिर उसको works overhead के नाम से जानते थे. फैक्ट्री है, works है, production overhead सब सेम होते हैं. ठीक है. तो इसमें हम लोग लिया करते थे उसको इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को. तो ये याद रखना, डायरेक्ट लेबर गोज टू प्रोडक्शन. ठीक है, डायरेक्टली, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. और फैक्ट्री ओवरहेड भी इनडायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में ही जाएगा. तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वो इनडायरेक्टली जाएगा. ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे, उसके बाद फाइनली जब वो टैली होगा तो किस में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में ही जाने वाला है. ठीक है, अल्टीमेटली वो वहीं जाएगा, बट इनडायरेक्टली. डायरेक्ट आप WIP को डेबिट नहीं कर सकते. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल तो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट करेंगे सेम, क्योंकि स्टोर है तो स्टोर अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है. ठीक है, तो लुक एट द क्वेश्चन. स्टोर इशूड, डायरेक्ट मटेरियल है तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर. व्हेन इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल तो आप WIP नहीं करेंगे, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स करेंगे. ठीक है, देन वी हैड स्टोर्स रिटर्न टू सप्लायर. तो आपने स्टोर जो है वो रिटर्न कर दिया किसको, सप्लायर, क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया आपने. ठीक है, तो सप्लायर अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड स्टोर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. तो उल्टा है, रिटर्न है तो रिटर्न एंट्री पास करना है, है ना. जब तक कि फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड आपको आगे वाला डेबिट कर रहे थे. जब रिटर्न आएगा तो आपको पीछे वाला क्या करना है, आपको डेबिट करना है. ठीक है, सो यहाँ पर सप्लायर यहाँ पर है, क्रेडिटर को आपने रिटर्न किया स्टोर, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू स्टोर, इस तरह से एंट्री पास करेंगे. सप्लायर का अकाउंट अपन यूज नहीं कर सकते, सप्लायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे. सो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर करेंगे. ठीक है, ये भी एंट्री हम लोगों ने पास कर लिया था, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर. ठीक है, then coming to sixth entry, what it says, now it is about direct wages and indirect wages. Same जैसा हम लोग ने मटेरियल के साथ किया था वैसे ही आपको लेबर के साथ करना है. Now we will not be using word store because now it is direct labor, sorry, wages. ठीक है, और whenever you are dealing with wages, so you have to make sure, if you look at the store part. ठीक है, first we purchased it. ठीक है, फर्स्ट वी परचेज्ड इट एंड देन वी यूज्ड इट. ठीक है, सेम आपको जब वेजेस दिया होता है और एक ही लाइन में दिया होता है कि वेजेस डायरेक्ट है या वेजेस इनडायरेक्ट है, सो आपके पास दो एंट्री होती है, डायरेक्ट वेजेस की दो एंट्री और इनडायरेक्ट वेजेस की दो एंट्री होती है. सो फर्स्ट यू विल पे, देन यू विल यूटिलाइज इट. ठीक है, जैसे कि आपने स्टोर परचेस किया था और उसके बाद में आपने क्या किया था, कुछ स्टोर को आपने WIP में दिया और कुछ स्टोर को आपने फैक्ट्री में दिया. ठीक है, वैसे ही आप क्या पहले क्या करेंगे, वेजेस पे करेंगे. तो वेजेस पे करने की एंट्री क्या होती है, वेजेस टू बैंक ही लिखते थे हम लोग, है ना. तो बैंक तो नहीं लिख सकते हम लोग, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किया और इसको ट्रांसफर किया किधर पे, WIP में. ठीक है, तो ये दो एंट्री है एंड बोथ दिस एंट्री आर रिलेटेड टू डायरेक्ट वर्कर्स और डायरेक्ट लेबर. सो डायरेक्ट लेबर आपको दिया है तो डायरेक्ट लेबर याद रखना है, डायरेक्ट लेबर हमेशा WIP में यूज होगा. बट यहाँ पे दो एंट्री होगी कभी, वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर्स को दो एंट्री में आपको स्प्लिट करना है. पहले तो वेजेस पे करना है, फिर उसके बाद में वेजेस को ट्रांसफर करना है, क्योंकि डायरेक्ट है इसलिए WIP में जाए. ठीक है, सो इसमें दो एंट्री है, फर्स्ट यू आर पेइंग फॉर इट एंड देन यू आर ट्रांसफरिंग. ठीक है, you are paying for it then you are transferring. If it is direct, so आप याद रख लो, डायरेक्ट वर्ड अगर आ गया तो WIP अकाउंट शुड बी डेबिटेड. ठीक है, सो फर्स्ट यू विल पे करने की एंट्री क्या है, डायरेक्ट लेबर अकाउंट डेबिट या सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, वर्ड स्पेसिफिकली आपको यूज करने की जरूरत नहीं, वेजेस वेजेस ही होता है, तो वेजेस को आप उसी तरह से ट्रीट करो. दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट वेजेस जो है वो WIP में यूज होगा, इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो फैक्ट्री में यूज होगा. ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में. सो डायरेक्ट जब आप वेजेस पे करेंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, तो दो बार आप पेमेंट करेंगे और दो बार आप यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, तो वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर्स की एंट्री क्या होगी, पहले तो वेजेस आपको पे करना है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दैट इज कैश एंड बैंक, और उसको फिर ट्रांसफर करना है WIP में. वैसे ही इनडायरेक्ट वेजेस को आपको पे करना है और उसको यूटिलाइज करना है किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में. ठीक है,
इसके बाद हम लोगों ने काफी सारी एक्सपेंसेस देखे थे। सबको एक ही तरह से आपको क्या करना है, डील करना है। जब भी आपको कोई एक्सपेंसेस दिया है और उसके आगे आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस आपको दिया है और कुछ मेंशन नहीं है, तो दे आर ऑलवेज इनकर्ड और पेड। ठीक है। अब यहाँ पे इनकर्ड और पेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इनकर्ड का मतलब क्या होता है? यू आर नॉट पेइंग इट बट इट इज ऑलरेडी इनकर्ड, है ना। सो मे बी द लेबर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क और यू हैव incurred certain expenses but you have not paid it। तो यहाँ पर चाहे आपने पे किया है चाहे आपने पे नहीं किया है, तो अपन को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमेशा हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। टू कैश एंड बैंक के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो कैश एंड बैंक तो हम लोग कहीं यूज नहीं करने वाले हैं, या फिर हम लोग आउटस्टैंडिंग वगैरह यूज नहीं करने वाले हैं। फाइनेंशियल मैटर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। व्हेन देयर इज एक्सपेंसेस, तो आपको एक्सपेंसेस सारे एक ही पॉइंट से देखने हैं। वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड एक्सपेंसेस कैन बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, योर ऑफिस ओवरहेड और योर सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री या फिर वर्क्स बोलो आप उसको, वर्क्स एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बार हमारी टेक्स्ट बुक में भी यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। दे ऑल आर सेम। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो अभी हम लोग जाएंगे 11th वाले पे ना। 11th हम लोग सॉरी 10th वाला जो है, 10th कंप्लीट करना है। ये देखो आप, सैलरी टू सेल्स ऑफिस। सो सेल्स ऑफिस स्टाफ मतलब क्या होता है? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो उसका अमाउंट था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हाउस। वेयर हाउस का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। वेयर हाउस इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर फिनिश गुड्स बिफोर फिनिश सेलिंग। गुड्स है। ठीक है। फिनिश गुड्स हम लोग रखते हैं बिफोर सेलिंग, तो ये भी क्या होता है? आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। वेयर एज हम लोग ने स्टोर के बारे में पढ़ा था कि स्टोर जो होता है वो क्या होता है? आपका मटेरियल रखते हैं वहां पे, तो ये ऑफिस फैक्ट्री में आ जाता है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। वेयर हाउस सैलरी आपकी 26419 है। मुझे टाइप करना पड़ेगा 26419, कॉपी नहीं कर सकते। 6419। okay, then next is हेड ऑफिस सैलरी। सो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि किसकी सैलरी है, तो इट विल बी योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 8100। दिस all thing we have already discussed. Then we have वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है। वर्क्स ओवरहेड कितना है? 1,28,832। 1,28,832। 28,000, 1,28,000। Okay. Then we have sales office and showroom expenses. As you know, it is selling expenses 61,432। Okay. Then we have warehouse and delivery expenses. Once again, warehouse is selling, delivery is also selling 48,919। 48,919। Okay. And last expenses was head office expenses. Since nothing is given, we will treat it as office expenses. तो यहाँ तक के हम लोग ने कंप्लीट किया था yesterday. Now we will go in detail in coming expenses, coming items. Okay, so we have completed 11 and 12, 13, 14, 15, 16. That's it.
So now we are talking about 17th entry. ठीक है. Now overheads absorbed in cost. ठीक है, एब्जॉर्प्शन की एंट्री आपको पास करनी बोल रहा है या फिर एप्लीकेशन की एंट्रीज आपको पास करनी बोल रहा है. ठीक है, सो वर्क्स कितना आपका एब्जॉर्ब हुआ है. ठीक है, सेलिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे कितने एब्जॉर्ब हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं. ठीक है, नाउ टेल मी वर्क्स किसको बोलते हैं. वर्क्स का मतलब क्या होता है. Related to Factory. production. It is related to factory expenses. And you already know about selling and distribution, है ना. selling and distribution के बारे में आपको already पता है. So these are selling and distribution expenses. And when we talk about office, so we are already aware कि office and administration expenses. ठीक है, so now we have recognized the type of expenses. Okay, अब ये कहाँ पे absorb होंगे. ठीक है, so now my question is कि works expenses या फिर factory expenses कहाँ पे absorb होते हैं. Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस करेक्ट है. आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं. सिमिलरली योर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन फिनिश्ड गुड्स. योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स. वेरी सिंपल, ये आपको हमेशा रहेगा ही. नहीं रहेगा तो आपको इसका टोटल जो है वो तो करना पड़ेगा. सो आइदर ऑफ दीज थिंग्स विल बी देयर. ठीक है, आपको फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स को टोटल करके डब्ल्यूआईपी में डालना है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को टोटल करके फिनिश गुड्स में जाना है. ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स को टोटल करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है. फिर बच्चे पूछते हैं सर इसको टैली कैसे करना है. ठीक है, टैली करने का आपको पैटर्न ऑलरेडी पता होता है. अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन दिया है तो आपके अकाउंट में डिफरेंसेस आएंगे. ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा. दैट विल बी टेकन केयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, सो अगर डिफरेंसेस आएंगे तो दैट विल बी टेकन केयर बाय, दैट विल बी लॉस और बेनिफिट व्हाटएवर इट इज, so that will be taken care by costing profit and loss. If there is a difference and that will be dealt at the end. At the end मतलब टैली वगैरह के टाइम पे आपको देखना है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं दिया है तो आपको फाइनली ये एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि एब्जॉर्ब हो गए हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो गया है वर्किंग प्रोग्रेस में. ऑफिस एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब हो गया है फिनिश गुड्स में. सेलिंग ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में. ये डिटेल्स को आप रीड किए बिना आप अपना नॉन इंटीग्रेटेड नहीं कर सकते. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस चार्ट. ठीक है, यहाँ पर जो चीजें दी है वो बाय डिफॉल्ट है. इसके अलावा अगर बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन फिनिश गुड्स, तब तो आपको फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू फिर ये फैक्ट्री वाला करना पड़ेगा. अगर मतलब कुछ रिवर्स चीजें दी होगी तो वो ऑलरेडी मेंशन होगा कि कहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन दिया होगा तो आपको प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट, दैट इज डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसा करना है. मतलब ऐसे इधर उधर एक्सपेंसेस यूज होते हैं. ठीक है, ऑफिस का बंदा फैक्ट्री में आ जाता है, फैक्ट्री का बंदा ऑफिस में, सेलिंग में, ऐसे हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है वो हम लोग को ध्यान देना. ठीक है, यूजुअली इसी तरह से चलता है. फैक्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है. मैंने आपको बोला था फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर्क इन प्रोग्रेस में ही जाएगा फाइनली. ठीक है, बट वो टोटल होने के टाइम पे जाता है. यहाँ पे उन्होंने किया दिया है ऑलरेडी कि कहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है या कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस. ठीक है, अगर मैंने मटेरियल परचेज किया है सो बोलो वो कहीं ना कहीं यूज होगा, है ना. दैट विल बी यूज्ड आइदर इन प्रोडक्शन और एट एनी अदर प्लेसेस. ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग फैक्ट्री मान के चलते हैं मटेरियल्स के लिए, लेकिन ये ट्रू भी नहीं है. मटेरियल ऑफिस में भी यूज हो सकता है, मटेरियल आपका सेलिंग में भी यूज हो सकता है. बट आपको अपना ब्रॉड माइंड जो है वो ब्रॉड रखना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है उस चीज को. बट बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि चीजें ऐसे ही चलती हैं तो वो आप जनरल एंट्रीज के तौर पे याद रख सकते हैं. बट दिमाग आपका खुला रखना है क्योंकि कई बार वो लोग देते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन, आता है, ऐसे आ सकता है. इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं कि ऐसी चीजें नहीं होंगी करके. बट जो चीज सीधी सीधी है वो एटलीस्ट याद रखोगे तो जो उनको ट्विस्ट देना है दे विल गिव इट क्लियरली. जो ट्विस्ट देते हैं वो लोग वो कभी भी क्लियरली देते हैं. लेकिन आप यहाँ पे देख लो ओवरहेड कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है वो नहीं दिया है. ठीक है, वर्क्स ओवरहेड कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है नहीं दिया है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है नहीं दिया है. ठीक है, बिकॉज दे वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट कि कैसे ये फ्लो होता है. ऑफिस एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी एब्जॉर्ब्ड बाय फिनिश गुड्स. ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा.
मीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो यूज होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ये चीज, जब आप इसको फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आपका प्राइम कॉस्ट जो था वो डब्ल्यू है ना। सो आफ्टर एडिंग दिस, ये जो सॉरी, आप जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स करते थे, ठीक है, तो आपका क्या आता था, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आता था, दैट इज कॉल्ड योर डब्ल्यू। आप उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते थे तो आपको क्या मिलता था, आपका वर्क्स जो कॉस्ट है वो मिल जाती थी। ऑफिस ऐड करने के बाद आपको फिनिश गुड्स भी मिल जाता था, ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप बोलते थे, जो ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद मिलता था। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस आप ऐड करते तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता था, ठीक है। दिस आर नथिंग, ये जो नाम आपको दिए हुए हैं ये एक्चुअली प्रोडक्ट के स्टेजेस के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो आपका प्राइम कॉस्ट उसके अंदर आता है, वो डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है, और दूसरा आता है आपका वर्क्स, और जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्टली वर्क इन प्रोग्रेस में ही जाते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आप ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो आपको जो फिनिश गुड्स मिलता था कॉस्ट शीट में, ठीक है, उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते थे, ठीक है, जिसको आप फिनिश गुड्स बोलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। वो कॉस्ट शीट अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा रहेगा तो आपको समझेगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट मेरा बताने का मतलब ये है कि वर्क्स एक्सपेंसेस जो है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है, वो आपका डब्ल्यू में एब्जॉर्ब होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा, और ऑफिस जो है वो फिनिश गुड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एक्सपेंसेस दिया है, वर्क्स। तो वर्क्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क्स, मतलब क्या नाम यूज किया हम लोग ने, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री। है ना। तो आप ध्यान से एक बार अगर आपने वर्क्स ओवरहेड्स यूज किया तो पूरे में आपको वर्क्स ओवरहेड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार कॉमन चीज यूज करना है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं, तो जो आप कॉमन यूज करते हैं वही आपको बार बार यूज करना है। 2,22,690, 2,22,690, ठीक है। नाउ कमिंग टू 18, नाउ विच एक्सपेंसेस आर बीइंग एब्सॉर्ब्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग के लिए हम लोग वर्ड यही यूज करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे एब्सॉर्ब होगा, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो दो बार है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। भले आपके क्वेश्चन में दो बार दिया है बट एंट्री सेम होगी, सेलिंग के लिए भी सेम, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेम, ओके। 9742 and distribution is 79,108, okay, now it's perfect. Now 20 जो आपकी जनरल एंट्री होगी वो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए है, so office expenses will be absorbed by finished goods control account to office and administration expenses, ठीक है। You can also use office overhead और administration overhead और combination of both। मैं ज्यादातर combination ही यूज करता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एक ही साथ में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग नाम यूज नहीं करना। एक बार आपने जो भी पर्टिकुलर आइटम जो सिलेक्ट कर लिया है कि इसी तरह से मेंशन होगा, आपको उसी तरह से उसको मेंशन करना। 35,819,
ठीक है, सो यहाँ तक के आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये एक ही एंट्री है जो आप आज नहीं सीखे हैं आज, जो एब्जॉर्प्शन की है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें जो है आप देखेंगे कि पैटर्न क्वेश्चन का इट विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पे यही होगा, ये चार्ट में जितनी भी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट होने वाली है, तो आप इसको जितना रिलीजियसली देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मुझे बताओ ये कौन सी एंट्री है इसमें से? Sir, work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। Finished goods. हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश होके किधर पे जा रहा है? फिनिश गुड्स में जा रहा है। ठीक है, योर प्रोडक्शन गेट्स ओवर हियर एंड द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यही बोल रहा है वो। इसी तरह से दिया होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और नीचे दिया होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ऐसे ही किसी तरीके से वो दिया होगा, यहाँ देख सकते हो वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस्ड है और ये सोल्ड है, तो सोल्ड वाला पार्ट कहाँ पर आएगा? Selling overheads. Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये मोमेंट याद रखना है, ये मैंडेटरी है, ये एंट्री आएगी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके दी होगी। जब मटेरियल स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, ये भी मैंडेटरी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में भी जाएगा, और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। ठीक है, एंड दे विल गिव इट लाइक दिस ओनली, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वर्ड्स का भी डिफरेंस है और यहाँ पे क्राइटेरिया का भी डिफरेंस है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और फिनिश्ड ऐसे बोल रहे हैं, तो आपका फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, बैकग्राउंड में बहुत नॉइस क्यों है? भारती, म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, ओके। फिनिश गुड्स अकाउंट जो है आपका वो डेबिट होगा जब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, तो कहां से आएगा ये? वर्क इन प्रोग्रेस से। करेक्ट है ना? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में जाएगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जितनी अच्छे से इसको समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए। 578412 578412 ना। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये सोल्ड वर्ड जो है एट इंपॉर्टेंट है। एट कॉस्ट और सेल्स आपको बस ये बताने के लिए दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ओनली। ठीक है, इट इज एट कॉस्ट ओनली। ठीक है, और सेलिंग प्राइस मतलब यू आर एडिंग योर प्रॉफिट, है ना? तो ये नेक्स्ट स्टेज है, मतलब जहाँ पे आप सेल करते हैं वाला स्टेज है। ओके, सो नाउ फिनिश गुड से निकलकर कहाँ पे गया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। सिक्स 13826। ओके, लास्ट में आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल करने के लिए यू विल सेल यू द गुड्स विल बी सोल्ड आउट टू योर डेटर्स, है ना? गुड्स विल बी सोल्ड टू डेटर्स। सो अगर मैं जनरली इसकी एंट्री पास करूं तो ऐसे होना चाहिए कुछ, डेटर अकाउंट डेबिट टू
सेल्स ऐसा, इसके लिए आपको एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल्स, और आपको पता है सेल्स कहाँ पर जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप डायरेक्ट जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे बताओ, कैन वी यूज डेटर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, P&L लिखते हैं शॉर्ट। ओके, कैन वी यूज डेटर हियर, डेटर यूज कर सकते हैं फटाफट। नो सर। तो क्या करूं, जनरल लेजर, देखना। यस सर। समझा ये एंट्री क्या है। जनरल लेजर मतलब ये डेटर है आपका, बिकॉज वी कैन नॉट यूज डेटर, इसलिए क्या यूज किया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे आप सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं, बट फिर आपको और एक एंट्री पास करना पड़ेगा सेल्स को ट्रांसफर करने, ठीक है। तो वो स्प्लिट हो जाएगा। तो कई जगह पे ये एंट्री को दो पार्ट में स्प्लिट भी किया है, दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है सेल्स, फिर सेल्स को डेबिट करके इसको ट्रांसफर किया है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इस तरह से भी करते हैं। तो एक बार सेल्स क्रेडिट होगा, दूसरी बार डेबिट होगा, तो उसका इफेक्ट जो है वो चला जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये अल्टीमेटली नील हो जाएगा सेल्स, ठीक है। और कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी सिंगल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो अल्टीमेटली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे कई जगह पे आप देखेंगे सेल्स वर्ड, तो वापस से एक एंट्री पास करता है सेल्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए और उसको ट्रांसफर करने के लिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कंबाइंड एंट्री एक बार में पास कर सकते हैं। बुक में भी उन्होंने कई जगह पे कंबाइंड एंट्री पास किया और कई जगह पे उन्होंने सेपरेट सेपरेट एंट्री पास की। तो बुक रेफर करने से पहले बहुत ध्यान देना आप लोग, ठीक है। हर जगह पे एंट्रीज आपको अलग 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 दिखेगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। So now I am done with this. If there is any doubt, any concern, any question, you can ask. कोई एंट्री में किसी को डाउट आया हो, कुछ नहीं समझा हो तो पूछिए। आज कौन है अटेंडेंस के लिए? सर आज सर 22nd एंट्री अमाउंट गलत है। ओके वेट, आई विल सी। यू हैव नॉट शेयर्ड यस्टरडेज फोर्थ लेक्चर रिकॉर्डिंग। हाँ, गूगल क्लासरूम पे नहीं है क्या फोर्थ लेक्चर का? फिर देखना पड़ेगा, आज डालना पड़ेगा। किया है, रिकॉर्डिंग भी किया है और यूट्यूब पे अपलोड भी किया है बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको वहां पे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आपको यहाँ पे मिल रहा है तो डायरेक्ट चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मेरे को क्लासरूम पे अपडेट करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारी क्लास में एक साथ दो लेक्चर्स होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसको पहले प्रॉपर कर लेते हैं, उसके बाद ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर। किसने अटेंडेंस लिया क्या? हाँ सर ले लिया। कर दिया सर। ओके ओके, चलिए। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर जो नहीं रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिया था आपने। ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। ओके, 22 में किसने बोला है कि डाउट है? 22 क्या है? 22 में कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके बेटा, इधर देखो, नो प्रॉब्लम, डाउट है तो कोई इशू नहीं। आपको दो चीजें कंपलसरी है क्वेश्चन में। एक तो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में जाएगा बेटा, ठीक है, और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। तो कैसे दिया होगा आपको ये दोनों चीजें? आपको दिया होगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड,
ठीक है, दैट मीन्स फिनिश टू WIP, ठीक है। फिर आपको दिया होगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब दिया होता है तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, तो ये फ्लो जो है वो इस तरह से जाएगा। दिस इज फॉर फिनिश गुड्स, मतलब ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हुआ और कहां पर गया, वो फिनिश गुड्स में गया। फिर फिनिश गुड्स के ऊपर कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस अप्लाई होंगे, फिर वो कहां पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, मतलब उस पर पैकिंग होगा, उस पर सेल्समैन कमीशन आएगा, ठीक है, वो सब ऐड होगा और उसके ऊपर उसकी सेल्स, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। यहाँ पे